नमस्कार, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नीट में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार के 9 सालों में लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात भगवंत खूबा ने कही। अपार्टमेंट के मुद्दे को देखने के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, बेंगलुरु विकास मंत्री शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कलबुर्गी कॉलेज को 10 छात्रों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कावेरी बेसिन में कम जल स्तर से तमिलनाडु के साथ विवाद शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी फेरबदल, अजीत पवार बने डिप्टी सीएम, इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। गुजरात, बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार, हजारों लोगों का जीवन प्रभावित। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर द्वारा नीट में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को आज शाहीन कॉलेज में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परिषद द्वारा सिलेक्टेड 45 स्टूडेंट्स जो कन्नड़ विषय में अच्छे अंक लेकर पास हुए हैं, उन्हें शाहीन शिक्षण संस्थान में निःशुल्क पढ़ने का मौका देने की घोषणा की है। इस मौके पर शाहीन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल खदीर, कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शेट्टी सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। नमस्कार, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾತಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಸಂತೋಷ್. ನಾನು ಶಾಹಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು 492. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಶಾಹಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಾಹಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವುದೆಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಾಹಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 350ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರಿಪೀಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಹೀನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಾವೇನು 75 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಇದಿತ್ತು, ಅದು ಇದುವರೆಗೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಬಡ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು 75 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓದಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೋ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. केंद्र सरकार की उपलब्धियों और उसकी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए जिला भाजपा द्वारा शनिवार को लाभार्थियों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करके केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के निरंतर प्रयास से देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है। इस मौके पर बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े सहित भाजपा के अन्य नेता उपस्थित थे। कैमरामैन कृष्णा की कवरेज। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पक्ष समर्थವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಮತದಾನ ಪಡೆದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ 3ನೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಪಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 40 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅರಾಜಕತೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದೆ. ಜಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 40 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಟಿಎಂ ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದೋಳೆ ಬಸ್ಸಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕಿರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೀರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ 5ರಿಂದ 10-15% ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ರೇಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳು, ಇವತ್ತು ಬೀಸುವಂತ ಗಿರಣಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಬೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ 7-8 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु अपार्टमेंट फेडरेशन यानी कि बीएएफ को आश्वासन दिया है कि अपार्टमेंट निवासियों के सामने आने वाले मुद्दों और उनकी मांगों को देखने के लिए एक सक्षम प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। शनिवार को मंत्री ने बीएएफ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उनसे एक ज्ञापन प्राप्त किया। हमने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के साथ एक बैठक की थी और उप मुख्यमंत्री को उनके द्वारा किए गए वादों को याद दिलाने के लिए आज एक शिष्टाचार बैठक आयोजित की गई थी। ये विशेष रूप से कर्नाटक अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 1972 में संशोधन करने जैसी हमारी प्रमुख मांगों को उजागर करने के लिए था। बीएएफ के महासचिव विक्रम राय ने कहा कि बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक पत्र लिखा गया था जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया कि संबंधित अधिकारियों को वादों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाएगा। हमें बताया गया कि एक सक्षम प्राधिकारी भी स्थापित किया जाएगा और मेरी जानकारी के आधार पर एक आईएएस कैडर अधिकारी इसका नेतृत्व करेगा। मंत्री ने कहा कि समिति मुद्दों पर गौर करेगी और जो भी आवश्यक होगा उसे लागू करेगी। बीएएफ चाहता है कि मंत्री बिल्डर्स द्वारा परियोजनाओं में देरी से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करे। वो ये भी चाहती है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि पूरी तरह से पूर्ण और अनुपालन वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिल्डर के दायित्वों का पालन किया जाए और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की शिकायत निवारण प्रणालियां समय पर शिकायतों के प्रबंधन और समाधान में सहायता के लिए प्रभावी ढंग से काम करे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कलबुर्गी में मदर मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को निर्देश दिया कि वो धोखाधड़ी के कारण 1 साल के नुकसान के लिए 10 छात्रों को मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए का भुगतान करे। अदालत ने कॉलेज को 10 छात्रों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा, कॉलेज को छात्रों को हुए नुकसान की आर्थिक भरपाई करनी होगी। हालांकि ये उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं देता है। न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को कॉलेज के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देते हुए आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि कॉलेज ने 7 अप्रैल 2022 से पहले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया, लेकिन छात्रों के नाम शामिल करने के लिए कागज की एक शीट चिपकाकर प्रवेश के रजिस्टर में हेरफेर की, जिससे कि ये तर्क दिया जाए कि उन्हें समय के भीतर प्रवेश दिया गया था और उनका विवरण दिया गया था। तकनीकी खराबी के कारण अपलोड नहीं किया जा सका। कॉलेज ने उन छात्रों और उनके माता पिता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जो बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को कॉलेज में प्रवेश दिलाने की आकांक्षा रखते थे। कॉलेज की ओर से गंभीर चूक और कमीशन के मद्देनजर अंतिम तिथि के बाद प्रवेश होने के बाद से डेटा अपलोड नहीं किया गया है। संभवतः अंतिम तिथि पर छात्रों को सूचित किए बिना उनसे फीस जमा कर ली गई है और उनका नाम डाल दिया गया। प्रवेश रजिस्टर में अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां आरजीयूएचएस के इनकार के कारण वे इस साल परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अदालत ने कहा कि कॉलेज ने अदालत में याचिका दायर कर चिकित्सा शिक्षा विभाग को वेब पोर्टल पर छात्रों के विवरण अपलोड करने और प्रथम साल की बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए पंजीकरण संख्या जारी करने की अनुमति देने के लिए उसके प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देशन देने की मांग की है। कावेरी बेसिन में प्रमुख जलाशयों के निचले स्तर पर पहुंचने और मानसून में कुछ हफ्तों की देरी के साथ कावेरी जल बंटवारा विवाद फिर से केंद्र में आ सकता है। कावेरी बेसिन जहां पिछले 5 सालों में भारी बारिश हुई, काबिनी, हरंगी, हेमावती और केआरएस
जलाशयों का संयुक्त भंडारण 114 टीएमसीएफटी की क्षमता के मुकाबले केवल 30.5 टीएमसीएफटी के साथ गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। अगर अगले कुछ हफ्तों में कावेरी बेसिन में सामान्य बारिश नहीं हुई तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है और नई सरकार की चिंताएं बढ़ सकती है। इससे बेंगलुरु, मैसूर और अन्य शहरों में पीने के पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले कोडागु में पिछले साल की तुलना में 50% से कम बारिश हुई और 2021 की तुलना में 75% कम बारिश हुई है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में कहा कि कर्नाटक तमिलनाडु को पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कावेरी बेसिन के बांधों में पर्याप्त पानी नहीं है। शनिवार को उन्होंने बेंगलुरु में पत्रकारों से कहा, हम तमिलनाडु से लड़ना नहीं चाहते क्योंकि वे हमारे भाई हैं। बीजापुर महानगर पालिका के आयुक्त के रूप में बदरुद्दीन सौदागर पद संभाला। इस अवसर पर सौदागर के पदभार संभालते ही राजनेता और विभाग के अधिकारी उनका स्वागत कर सम्मान करने पहुंचे। बीजापुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಜಯಪುರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ನಗರ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ನಗರವನ್ನು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास,
प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ है। अजीत पवार अपने 30 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा 9 विधायक मंत्री बने हैं, जिसमें छगन भुजबल, दिलीप वलसे, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा, अदिति तटकरे, संजय बनसोड़े और अनिल पाटिल का नाम शामिल है। ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम महाराष्ट्र राजभवन में आयोजित किया जा रहा था। तो वहीं अजीत पवार ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सीक्रेट मीटिंग हुई थी। उसी में सियासी बदलाव की रणनीति तैयार हुई। अजीत पवार ने अपने सरकारी निवास स्थान देवगिरी पर विधायकों की बैठक बुलाई थी। अजीत ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी छोड़कर संगठन में किसी पद पर काम करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी के बाद से एनसीपी में अजीत पवार के महाराष्ट्र अध्यक्ष बनने की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी। अजीत पवार के सरकारी निवास पर मौजूद विधायकों ने अजीत पवार को महाराष्ट्र के पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपने की बात रखी थी। विधायकों ने मांग की थी कि जल्द से जल्द नए अध्यक्ष का चुनाव हो। इस बैठक में जो लोग मौजूद थे उसमें दिलीप वलसे, पाटिल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, किरण लहमाटे, नीलेश लंके, धनंजय मुंडे, रामराजे निम्बालकर, दौलत दरोड़ा, मकरंद पाटिल, अतुल बेणके, सुनील टिंगरे, अमोल मिटकरी, अदिति तटकरे, सुप्रिया सुले, अमोल कोल्हे सांसद, तो वहीं शेखर निकम और निलय नाइक मौजूद थे। बैठक खत्म होते ही सभी विधायक एक साथ अपनी अपनी गाड़ी में बाहर निकले थे। इसके बाद ये खबर आने लगी कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इसी दौरान अजीत पवार भी आवास से बाहर निकले और सीधा राजभवन की ओर निकल गए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और बाढ़ का संकट गहरा गया है। इसमें गुजरात, असम और बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। असम में तो बाढ़ की वजह से 43,000 से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। वहीं बिहार में गंडक के उफान की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
गुजरात में बीते दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक में पानी भर गया है। वलसाड़ में तो औरंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भरा हुआ है। गुजरात में क्या है हालात, वो भी जरा समझिए। गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से कई लोगों की जान गई है। जूनागढ़ से जामनगर तक लोग बारिश की वजह से काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उनके घरों में पानी भर चुका है। सड़कें पानी से लबालब भरी है। आईएमडी ने संभावना जताई है कि अभी गुजरात को बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है और आज भी जूनागढ़, जामनगर, वलसाड़ और सूरत में भारी बारिश का अलर्ट है। बिहार के भी कई जिलों में बारिश हो रही है। इस वजह से यहां नदियों के जल का स्तर बढ़ रहा है। कोसी, वाल्मीकि नगर और गोपालगंज में गंडक नदी के उफान में होने की वजह से लोग डरे हुए हैं। इसकी वजह से जो गांव थोड़ा नीचे बसे हैं उन पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। राज्य को अगले 1 हफ्ते तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में अगले 1 हफ्ते तक बारिश होगी। सबसे ज्यादा बाढ़ का असर असम में ही दिखाई दे रहा है। यहां बाढ़ की वजह से 43,000 से ज्यादा लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। इस बाढ़ की वजह से किसानों और मछुआरों को काफी नुकसान हुआ है। असम के बारपेटा जिले में सबसे ज्यादा लोग संकट में हैं। समाचार एजेंसी एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को उनकी फसल भूमि और मछली पालन में बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले 5 दिनों में असम में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और असम के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 7 से 10 दिनों में मणिपुर के हालात सुधर जाएंगे। शर्मा ने इस दावे के पीछे ये तर्क दिया कि राज्य एवं केंद्र सरकार शांति बहाली के लिए चुपचाप काम कर रही है। वहीं शर्मा ने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि वो तब चिंता जाहिर कर रहे हैं जब मणिपुर में अपेक्षाकृत शांति कायम हो गई है। डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हिमंत बिस्व शर्मा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मणिपुर में स्थिति दिन प्रतिदिन सुधर रही है। मेरे विचार से अगले 7 से 10 दिनों में स्थिति में और सुधार आएगा। उन्होंने दावा किया कि मणिपुर में पिछले महीने स्थिति में काफी सुधार आया। शर्मा ने कहा कि मणिपुर सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय चुपचाप काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 1 महीना पहले हिंसा का स्तर क्या था और आज क्या है। उन्होंने कहा, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि स्थिति में काफी सुधार आया है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए शर्मा ने कहा कि जब मणिपुर में अपेक्षाकृत शांति आ गई है तब कांग्रेस वहां के हालात के बारे में शोर मचा रही है। उसे तब आवाज उठानी चाहिए थी जब स्थिति बेहद खराब थी। बता दें कि मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती और अल्पसंख्यक कुकी समुदाय के बीच 3 मई को शुरू हुए जातीय संघर्ष में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक में फिलहाल समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर कुछ खास फैसला नहीं हो सका। पार्टी की ओर से जयराम रमेश ने कहा कि यूसीसी पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट जारी होने के बाद 15 जून को कांग्रेस ने जो कहा था आज भी उसी पर कायम है। चूंकि इस संबंध में कोई ड्राफ्ट या विधेयक सरकार की ओर से नहीं लाया गया है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम वरिष्ठ नेता शामिल हुए। ये बैठक मानसून सत्र को लेकर हुई। जयराम रमेश ने बताया कि इस बार हमने 20 दिन पहले बैठक की। उन्होंने कहा कि जनता के कई मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे को कैसे उठाया जाए, बैठक में इस बात पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि पहला मुद्दा मणिपुर का था, उस पर काफी चर्चा हुई है। कांग्रेस की ओर से मांग की जाती रहेगी कि सीएम जल्द से जल्द इस्तीफा दे। पीएम और गृह मंत्री का हालात पर नियंत्रण नहीं है। पीएम पिछले 60 दिन से इस मुद्दे पर चुप है, वो अपनी चुप्पी तोड़े। हम स्टैंडिंग कमेटी में मणिपुर के हालात का मुद्दा उठाने की मांग करते हैं। जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी की सदस्यता के जाने के बारे में भी चर्चा हुई। मानसून सत्र में हम वो मुद्दा भी उठाएंगे। साथ ही ओडिशा के बालासोर रेल हादसे का मुद्दा भी बैठक में उठा। हम रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग करते रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई पर भी चर्चा हुई। इस मुद्दे को भी हम मानसून सत्र में उठाएंगे। अडानी मामले पर जेपीसी की मांग भी हम इस सत्र में करते रहेंगे। देश में संघीय ढांचे पर जो हमला हो रहा है उस मुद्दे को भी उठाएंगे। साथ ही महिला पहलवानों का मुद्दा भी हम सदन में उठाएंगे। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में आज अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तर हुसैन द्वारा शराब मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कचहरी चौराहा स्थित अम्बेडकर चौक गोरखपुर से लखनऊ तक पदयात्रा निकाली। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन केंद्र के डॉक्टर विजेंद्र नारायण ने गोरखपुर में हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया तथा यात्रा के दौरान रास्ते में जो भी पुलिस चौकी जिला मुख्यालय पड़ेगा वहां से संबंधित उचित कार्य को शराब मुक्त प्रदेश बनाने संबंधी मांगों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। तथा एनजीओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अख्तर हुसैन ने कहा कि बहुत सारे परिवार में शराब की वजह से कलह मचा रहता है। लगातार जहरीली शराब पीने से लाखों की मौत प्रदेश में हो रही है, जिससे परिवार में घोर संकट और निराशा का भाव पनप रहा है। हमारी प्रमुख मांग सरकार से है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि धर्म स्थलों, विद्यालय, मदरसों, सामाजिक स्थलों से 1 किलोमीटर की दूरी पर शराब की दुकानें हों। दूसरी मांग जारी है, शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा। सबसे प्रमुख मांग हमारी है कि भविष्य में संपूर्ण उत्तर प्रदेश से शराबबंदी लागू की जाए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर जमील अख्तर जान, सरवर नजमुल
नजीमुल हसन, आसिफ खान, शाहरुख खान, अता मोहम्मद, नसीम अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। जालौन में बोले केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, देश में लागू होना चाहिए समान नागरिक संहिता कानून। आज की परिस्थिति को देखते हुए देश में बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था यूसीसी। एक परिवार में 2 संविधान और 2 विधान नहीं होने चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी बोला हमला। मायावती विरोधियों के वोट बैंक के लिए कर रही यूसीसी का विरोध। देश को एक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला रहे हैं यूसीसी। जालौन के उरई में हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने आए थे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा। मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार विदेश के। फ्रांस में अब भी दंगे जारी हैं। यहां 27 जून को एक नाबालिग लड़के नाहिल की मौत के बाद से हिंसा भड़क गई है। दरअसल ट्रैफिक पुलिस द्वारा पेरिस में चेकिंग के दौरान नाहिल को पुलिस ने गोली मार दी थी। इस घटना में नाहिल की मौत हो गई थी। पुलिसकर्मियों का इस मामले पर कहना था कि लड़की के पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं था। चेकिंग के दौरान लड़के ने वाहन से ट्रैफिक पुलिस को कुचलने का प्रयास किया, जिसके बचाव में लड़की को गोली मारी गई। हिंसा के मद्देनजर फ्रांसीसी पुलिस ने 1300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। नाहिल की मां ने नाहिल की मौत पर शोक व नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इस दौरान पुलिस को अपने बेटे की हत्या का दोषी ठहराने से इनकार कर दिया। नाहिल की मां ने अपने बेटे की जान लेने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि मैं इस मामले में केवल एक व्यक्ति को दोषी मानती हूं जिसने मेरे बेटे की जान ले ली। बता दें कि नाहिल की मौत की खबर जब पूरे फ्रांस में फैली तो चारों तरफ हंगामा होने लगा और दंगा होने लगा। देश में फैले दंगे को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक रात में 45,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों के साथ बख्तरबंद वाहनों को तैनात कर दिया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ देश के अधिकांश लोग मुफलिसी में जी रहे हैं तो दूसरी तरफ मजहबी कट्टरता भी अपने उफान पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंध में गुरु नानक देव की स्पर्श स्थली गुरुद्वारा तखर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की खबर सामने आ रही है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही पेशावर में 2 सिखों की हत्या के बाद मुल्क में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल पैदा हो गए थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के गुरुद्वारा तखर साहिब में कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला बोलकर गुरबानी पाठ रुकवा दिया। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से बकरीद के मौके पर किसी भी अन्य धर्म के पाठ के चलने का विरोध किया और उन्हें गुरुद्वारे से बाहर जाने को कहा। बताया जाता है कि इस दौरान आरोपियों ने गाली गलौज भी की और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन पुलिस ने सभी को बगैर किसी एक्शन के छोड़ दिया। पाकिस्तान में ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा आरोपियों को छोड़ा जाना आम है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के गुरुद्वारा तखर साहिब में कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला बोलकर गुरबानी पाठ रुकवा दिया। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से बकरीद के मौके पर किसी भी अन्य धर्म के पाठ को करने का विरोध किया। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। कंगना रनौत और अवनीत कौर ने डांस फ्लोर पर लगाई ऐसी आग, नवाजुद्दीन भी रह गए दंग। अब देखते हैं समाचार खेल जगत से। मेरे लिए सबसे खराब समय वेस्टइंडीज के खिलाड़ी का छल का दर्द, कैरेबियाई क्रिकेटर्स से की भावुक अपील। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। मेक इन इंडिया अभियान को बड़ा बूस्ट, विदेश की कंपनियां भारत में लगाएंगी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नीट में उत्तीर्ण रहे विद्यार्थियों को कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार के 9 सालों में लगभग 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात भगवंत खूबा ने कही। अपार्टमेंट के मुद्दे को देखने के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, बेंगलुरु विकास मंत्री शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कलबुर्गी कॉलेज को 10 छात्रों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कावेरी बेसिन में कम जल स्तर से तमिलनाडु के साथ विवाद शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी फेरबदल, अजीत पवार बने डिप्टी सीएम, इन नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। गुजरात, बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार, हजारों लोगों का जीवन प्रभावित। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।